नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। शहर के बीएसएफ जवान आसाम बॉर्डर पर शहीद, कल निकलेगी अंतिम यात्रा। शहर के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रही आर्थिक सहाय, वडोदरा नागरिक संघर्ष मंच ने उठाई आवाज। और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जन्म जयंती, शहर कांग्रेस ने किया वृक्षारोपण। गोरवा के शहीद बीएसएफ जवान की शहादत पर पूरा शहर फख्र कर रहा है। शहीद को आसाम में बीएसएफ अधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पिछले 9 साल से बीएसएफ में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत आसाम बॉर्डर पर तैनात वडोदरा के जवान संजय साधु शहीद हो गए हैं। गोरवा इलाके में रहने वाले संजय साधु ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। शहीद के पार्थिव शरीर को आज आसाम में बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर आखिरी सलामी दी गई। गोरवा करोड़िया रोड पर भगवती सोसाइटी में रहने वाले संजय साधु के परिवार में पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। शहीद की शहादत की खबर के बाद से ही परिवार में शोक की लहर है। आज शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर हवाई जहाज के जरिए वडोदरा एयरपोर्ट लाए जाने की संभावना है। कल सुबह 9 बजे शहीद की अंतिम यात्रा उनके गोरवा स्थित निवास स्थान से निकाली जाएगी। शहर के नवायार्ड के वीर जवान आरिफ पठान पिछले दिनों ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। 1 महीने के भीतर ही वडोदरा शहर ने दूसरा जांबाज खो दिया है। शहर के लोग शहर के जांबाज जवान संजय साधु की शहादत को कोटि कोटि सलाम कर रहे हैं। शहीद के परिजनों से मिलने जिलाधीश शालिनी अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, डीसीपी दीपक मेघानी, आरएसपी के नगर सेवक राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे, हेमलता गौर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। પરમ દિવસે અહીંયાના જો વતની સંજયભાઈ સાધુ જો બીએસએફમાં ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને ઇન્ડો બાંગ્લાદેશ બોર્ડર ઉપર એ પેટ્રોલિંગ કરતા હતા અને આ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન એમનું દુઃખદ અવસાન થયું છે। ખરેખર શહીદ ગતિ પ્રાપ્ત થયા છે અને યુવાન હતા અને બહુ જ નાની ઉંમરમાં શહીદ ગતિ પ્રાપ્ત થયા છે। એમના હું પરિવારને મળી છું। 3 એમના બાળકો છે, 2 દીકરીઓ છે, 1 બાળક છે, વાઈફને અને બધાને જ અમે મળીએ છીએ અને એમને પરિવારને અમે સાંત્વના આપી છે અને સાથે સાથે જો પણ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ તંત્ર અને બીએસએફ તરફથી જો પણ મદદ જોઈએ અમે પૂરી પાડીશું અને એમના પરિવારના સાથે અમે ઊભા છીએ અને એમને ખૂબ જ સારી રીતે પોતાના જાનની પરવા કિએ વગર દેશની રક્ષામાં આપનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કર્યું છે અને આ લોકો દેશના બોર્ડર્સ ઉપર કામ કરે છે એટલે દેશના લોકો શાંતિથી ઊંઘી શકે છે, શાંતિથી રહી શકે છે। દેશની સુરક્ષા અને સલામતીમાં લોકોનું ખૂબ જ મોટું યોગદાન છે
એટલે હું દિવંગત આત્માને પણ ખૂબ ખૂબ ભગવાનથી પ્રાર્થના કરું છું કે એમને શાંતિ પ્રદાન કરે અને પરિવારને પણ આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં એમનાથી ઉભરવા માટે પણ ખૂબ ખૂબ એમને હિંમત અને હૌસલા આપે. અમે પણ બધા એમના સાથે ઊભા છીએ અને વડોદરાના યુવાનો દેશની રક્ષા માટે ખૂબ જ આગળ આવીને કામગીરી કરી રહ્યા છે. તો ખરેખર આ તમામ યુવાનોને પણ હું તહે દિલથી એમનો આભાર માનું છું. આજે દિલ્હી આવી રહ્યા છે અને પછી રાત્રે દિલ્હીથી અહીંયા વડોદરા એરપોર્ટ ઉપર આવવાના છે. રાત્રે 11:30 વાગે અહીંયા આવવાના છે અને એમના માટેનું જો પણ શહીદનું સન્માન થવું જોઈએ તમામની તૈયારીઓ પોલીસ, BSF અને તંત્ર તરફથી કરવામાં આવી રહી છે અને પછી એમને હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવશે અને કાલે બધું જ સન્માન સાથે એમનું અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે. BSFના ઇન્સ્પેક્ટર સ્વર્ગીય શ્રી સંજયભાઈ સાધુ ઇન્ડો બાંગ્લાદેશ બોર્ડર ઉપર આપણા ફરજ દરમિયાન શહીદ થયા છે અને એવા દુઃખના ઘડીમાં અમે લોકો એના પરિવારજનો સાથે મળીને સંતાવના આપી છે અને જો શહીદના બોડી આજે એના જો પાર્થિવ શરીર આજે સાંજે લેટ નાઇટ આપણા બड़ौदा ખાતે આવશે અને પૂરે સન્માન સાથે જો એના ત્યાં રાત્રિમાં મૂકીને સવારે જો એને અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં આવશે. એના તૈયારી બી અમે લોકો કરીએ છીએ અત્યારે અને 1 મહિનાના અંદર બીજી આપણા બड़ौदा શહેરના જવાન જો શહીદી વોરી છે આપણે દેશના રક્ષા માટે તો અમે યાદ કરીએ છીએ સંજયભાઈને અને એવા દુઃખના ઘડીમાં અમે સમગ્ર લોકો જો એના પરિવાર સાથે છીએ. નાના દીકરી અને નાના બાળક છે એના તો એવા સમય જો અમે લોકોના જો અમારા મોરલ સપોર્ટ છે એના પરિવારના સાથે છે અને એના જે રીતે જો આપણે અમે બધા લોકો માટે જો શહીદી વોરી છે દેશના રક્ષા માટે અમે લોકો યાદ કરીએ છીએ અને એના શહીદને સલ્યુટ કરીએ છીએ. અહીંયાથી સવારે બી ટાઈમ પરિવારજનો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. એના ગોરવા સ્મશાન ભૂમિમાં એના અંતિમ યાત્રા ત્યાં જશે અને ત્યાં જો આગળની વિધિ ફ્યુનરલની વિધિ થશે ત્યાં સુધી પૂરો સમગ્ર રૂટ પર બંદોબસ્ત રહેશે અને સાથોસાથ જો બી આપણા પૂરે સન્માન સાથે જો શહીદને સન્માન આપવામાં આવે છે આ તમામ જો વ્યવસ્થા રહેશે અને તમામ પ્રકારથી અમે લોકોના દિલ સે યાદ કરીને એના વિદાય આપીશું. જે રીતના પોતાની જે શહીદી વરી છે સમગ્ર દેશ, સમગ્ર વડોદરા શહેર તમે જે રીતના જોઈ રહ્યા છો કે નાનામાં નાનો માણસ હશે કે કોઈ પણ અધિકારી હશે, કલેક્ટર હશે કે કમિશનર હશે, આજે સૌ આ એક દુઃખના ઘડીએ સૌ લોકો એમના પરિવાર સાથે મળવાયા છે. સૌ એમના પરિવારોને સાંત્વન આપવામાં આવ્યા છે કારણ કે આ એક શૈક્ષણિક નગરી, આ એક સંસ્કારી નગરી અને સાથે સાથે શહીદીઓની બી નગરી ગણાય. ગર્વ બી થાય છે, દુઃખ પણ થાય છે. પણ જે રીતના જે શહીદી એક જ મહિનાની અંદર બબ્બે આરિફ ખાન પછી આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે સંજયસિંહ, એટલે વડોદરા શહેર એ સમર્પિતોનું શહેર છે, શહીદોનું છે. અગાઉ પણ આવી રીતના વડોદરા શહેરના દરેક કેટલાય આપણા જવાનોએ આ જ રીતના શહીદી આજે સમગ્ર એમના પરિવાર સાથે આ શહેર, આ વિસ્તાર સૌ એમની સાથે ઊભો છે અને એમને અશ્રુભીની એમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવે છે. વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. वडोदरा नागरिक संघर्ष मंच द्वारा बाढ़ पीड़ितों के हक में धरना प्रदर्शन किया गया। शहर में पिछले दिनों आई बाढ़ में कई गरीब परिवार प्रभावित हुए थे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं और उनके पास घर का सारा सामान भी पानी में खराब हो गया था। बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार की उचित सहाय अब तक नहीं मिल पाई है। इस मुद्दे वडोदरा नागरिक संघर्ष मंच द्वारा गांधीनगर गृह पर धरना देते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों के हक में आवाज़ उठाई गई। साथ ही बाढ़ से पीड़ित लोगों की लोक सुनवाई भी आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं वडोदरा नागरिक संघर्ष मंच के सामने रखी। आज यहाँ पर वडोदरा नागरिक संघर्ष मंच के द्वारा धरना और लोक सुनवाई का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम वडोदरा में जो 31 जुलाई को और उसके 10 दिन के अंदर दूसरी बार जो 2 बार पूर आया, सैलाब आया, उसमें जो नागरिकों को और कुटुंबों को जो नुकसान हुआ है, पूर के जो कारण है उसमें क्या जो यहाँ के तंत्र की क्या क्या लापरवाही है, बेदरकारी है, उसके अलावा जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जो पीड़ित है,
उनकी व्यथा को व्यक्त करने के लिए और जिन लोगों को कितना नुकसान हुआ उसका एक असेसमेंट करने के लिए यहाँ पर इस धरने का और लोक सुनावनी का आयोजन किया गया है। हमको ये मालूम है और बहुत सारा एनालिसिस भी आया है कि बड़ौदा में जो पूर आया है उसमें मानव तंत्र की जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी जवाबदारी उसके पीछे रही है। तो वो ना हो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी हमने सूचन और उसके लिए जो कुछ भी एडवाइस हो सकती है वो भी हम मांग रहे हैं। दूसरा क्या आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी विविध विस्तारों से शहर के मंसूरी कब्रस्तान, मेमन कॉलोनी, याकुतपुरा, किसनवाड़ी, परशुराम भट्टा, फतेहपुरा, सोमा तालाब, मेमन कॉलोनी और इसके अलावा भी बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ की महिलाएं और पीड़ितें यहाँ पर आई है। इन फैमिलीज़ को सरकार की तरफ से जो जाहिर की गई है कैश डोल और घर बकरी की सहाय नहीं मिली है। यानी आज 20 दिन के बाद भी ये विस्तारों में न तो कोई अधिकारी जाकर किसी ने सर्वे किया है, ना ही इनको वो रकम की जो सहाय की रकम है वो चुकवनी नहीं की है। तो ये पीड़ित कुटुंब जो है ये अपनी व्यथा रखने के लिए, अपने जो नुकसान हुए उनकी बात तंत्र को पहुंचाने के लिए यहाँ पर धरने के कार्यक्रम में आए हुए हैं और अपनी बात यहाँ पर वो रख रहे हैं। तंत्र से ये निवेदन करते हैं कि कम से कम जो सहाय है घर बकरी और कैश डोल की जो सहाय है वो तात्कालिक इनको दिया जाए, उसकी चुकवनी की जाए। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जन्म जयंती पूरे देश भर में मनाई गई। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इस मौके पर वृक्षारोपण किया गया। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 74वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के प्रति उनके प्रयासों को हमेशा याद करते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी देश के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वे सिर्फ 40 साल की उम्र में देश के पीएम बने थे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और 21 मई 1991 को आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक भयावह बम विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई थी। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी की कभी भी राजनीति में आने की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, तब कुछ समय के लिए राजीव परिवार के साथ विदेश शिफ्ट हो गए थे। लेकिन 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की मौत के बाद हालात बदल गए। राजीव गांधी को वापस लौटना पड़ा और अपनी मां इंदिरा को सहयोग देने के लिए उन्होंने 1982 में राजनीति में कदम रखा। राजीव गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने थे और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी राजीव गांधी के कंधों पर डाल दी थी। ऐसे महान नेता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जन्म जयंती पर देश भर में कांग्रेस द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी ने भी प्रतापनगर रोड पर स्थित जैनिथ स्कूल में वृक्षारोपण कर इस दिवस को मनाया। कांग्रेस के नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को सराहा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजीનો આજે 75મો જન્મદિવસ છે। સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ પરિવાર ઉત્સાહથી ઉજવી રહ્યા છે। એમના શાસનકાળ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રાંતિ, ટેલિફોનિક ક્રાંતિ, કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન, 18 વર્ષે યુવાનોને મતાધિકાર, 33% મહિલાઓને અનામત, પંચાયત રાજ, આ બધી યોજના હેઠળ 21મી સદીનું સપનું જોનાર સ્વર્ગસ્થ શ્રી પ્રધાનમંત્રી રાજીવ ગાંધીના જન્મદિવસે તમામ દેશના લોકો યાદ કરે છે। કારણ કે 21મી સદીને વિચારીને એમને દેશને આજે જે પ્રગતિશીલ બન્યો છે એમાં એમનો મહત્ત્વનો ફાળો છે। સમગ્ર વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પરિવાર આજે જન્મદિવસને સત્સદ નમન કરે છે। આજે વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમની સાથે સાથે કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તા જોડાઈને કોંગ્રેસને મજબૂત કરવાની જે જિજ્ઞાસા લઈને આગળ વધી રહ્યા છે। નિખાલસથી સાચી વાતનો સ્વીકાર કરવો
33% મહિલાઓને રિઝર્વેશન આપીને દેશના પાયાને મજબૂત કરવું કે 21મી સદી તરફ લઈ જનારા રાજીવ ગાંધી જેને ટેલિકોમ સેક્ટરમાં ટીવી અને મીડિયાના સેક્ટરની અંદર જે ઉદારતાથી જે કામ કર્યું છે એના લીધે ભારત દેશ મજબૂત થયું છે અને એવા રાજીવ ગાંધીને કોંગ્રેસ પાર્ટી કદી ભૂલી શકતી નથી. દેશે પણ નહીં ભૂલવું જોઈએ કે યુથ અને મહિલાઓને જો સશક્તિકરણ આપ્યું હોય તો રાજીવ ગાંધી સિવાય કોઈએ નથી આપ્યું. એટલે આજે 75માં એમના જન્મદિવસે ઉત્સાહભેર એમની ઉજવણી કરી રહ્યા. आज शहर का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी है, आप देखते रहिए VNM न्यूज़. ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં. Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidham Cross Road, Manjalpur or call 7227968999. सहज इंटरनेशनल 10 सालों से शहर में वीजा और ट्रैवल कंसल्टेंसी में अव्वल नाम. वी प्रोवाइड एयर टिकट, पासपोर्ट, अटेस्टेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड ऑल ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ. सहज इंटरनेशनल देता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लिए विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की सर्विसेज. सिर्फ इतना ही नहीं, सहज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फैमिली और ग्रुप टूर्स भी. सहज इंटरनेशनल 303 टॉप फ्लोर एलियन कॉम्प्लेक्स अबव एक्सिस बैंक निजामपुरा वडोदरा. वह विश्वामित्री अभियान अंतर्गत 5वें नेशनल राउंड टेबल का आयोजन किया गया. कम्युनिटी साइंस सेंटर द्वारा पिछले 9 सालों से वह विश्वामित्री अभियान अंतर्गत विश्वामित्री नदी के पुनर्जीवन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. विश्वामित्री नदी के रिवर फ्रंट और तटीय इलाकों को प्रदूषण से दूर रखने पर 5वें नेशनल राउंड टेबल का आयोजन कम्युनिटी साइंस सेंटर में किया गया. राउंड टेबल में नेशनल क्लीन गंगा मिशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव किशोर, गुजरात सरकार के जल संपदा विभाग के सलाहकार बाबूभाई नवलावाला समेत के विशेषज्ञों ने उपस्थित रहकर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की. हाल ही में विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ से शहर के सैकड़ों परिवारों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में विश्वामित्री नदी के मुख्य प्रवाह को बाधित किए जाने की कोशिश पर भी राउंड टेबल में चर्चा की गई. साथ ही शहर के बरसाती पानी का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करने पर भी बैठक में जोर दिया गया. इस बैठक में विशेषज्ञों के साथ साथ पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर मुनी मेहता, अवी सबावाला, अमीर रावत, कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही. कम्युनिटी साइंस सेंटर पे फिर से एक बार मतलब 5वां राउंड नेशनल राउंड टेबल होने जा रहा है. और इस राउंड टेबल का जो वो है पॉइंट है महत्व का, वो ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिवर रिजुविनेशन या रिवाइवल कैसे हो सके, वो टॉपिक को लेकर है. आज के हमारे राउंड टेबल में बतौर चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट कह सकते हो आप, श्री राजीव किशोर जी आए हैं जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. वो दिल्ली से आए हैं इस प्रोग्राम में. दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे वो है बाबूभाई नवलावाला साहब, जो एडवाइज़र हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को वाटर रिसोर्स के ऊपर. तो वो दोपहर को 12 बजे आने वाले हैं वो. और डॉक्टर एम.एच. मेहता इस जो विश्वामित्री अभियान को लीड कर रहे हैं, तो उन्हीं के अंडर में हम लोग ऐसे 5वीं बार नेशनल राउंड टेबल का आयोजन किया गया है. और उसमें डॉक्टर संस्कृति मुजुमदार भी है जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़ौदा में कहाँ कर सकते हैं उसका एक प्रेजेंटेशन बना के दे रही हूँ. हमको अभी इतना बारिश हुआ और फ्लड हुआ, उसके बाद बड़ौदा वासियों को यह एहसास हुआ कि पानी गिर के बह तो जाएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा तो ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन ऐसे गिरे हुए पानी को बारिश के हम लोग अगर हार्वेस्ट करें, ज़मीन में उतार दें. क्योंकि हुआ क्या है कि हम लोग हमेशा कारपेटिंग, वॉल टू वॉल कारपेटिंग करते हैं, रोड बड़ा बनाते हैं, तो उसमें पानी जो बारिश का गिरता है वो सोखना नहीं होता है. उसका ज़मीन में सोखना जो बहुत ज़रूरी है वो जाता ही नहीं ज़मीन में. उसका यही होगा कि इस तरह का हम लोग अगर करते रहेंगे काम, सीमेंट के बढ़ावा देते रहेंगे तो उतना कम सोखना होगा और ये सब चीज़ें हमको तकलीफ़ देगी. पीने के पानी की किल्लत हो सकती. तो इसी पे हम लोग अभी ज़्यादा मजबूती से उसको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं इस राउंड टेबल पे कि जो भी बारिश का पानी आता है, रिवर तो है ही नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन हम भी हमारे सोसाइटी का भी पानी हार्वेस्ट करके रख सकते हैं अंदर. और नदी को ही वो अल्टीमेटली पहुँचेगा तो नदी और रिजुविनेट हो सकती है, उसका पानी की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी बढ़ सकती है, सुधर हो सकती है. वाघोड़िया के नंदालय अपार्टमेंट में गटर जैसे बदबूदार पानी की आपूर्ति की वजह से वहां के निवासी काफी परेशान हैं.
वाघोड़िया के नंदालय अपार्टमेंट के निवासी पिछले कई महीनों से दूषित पानी की समस्या से परेशान है। यहां के निवासियों को ड्रेनेज के पानी के साथ मिला हुआ दूषित और बदबूदार पानी वितरित किया जा रहा है, जो ना ही पीने के लायक है और ना ही इस्तेमाल के लायक। मामले की शिकायत बार बार वडोदरा महानगर पालिका से किए जाने के बावजूद कार्यवाही के अभाव में लोग हर रोज पानी खरीदकर पीने के लिए मजबूर है। दूषित पानी की समस्या से ग्रस्त महिलाओं ने दूषित पानी की बोतलों के साथ प्रदर्शन करते हुए वडोदरा महानगर पालिका समक्ष अपनी आपत्ति जताई। અમે અહીંયા નંદાલય કોમ્પ્લેક્સમાં રહીએ છીએ, પૂનમ કોમ્પ્લેક્સની પાછળ છેલ્લા 2 વર્ષથી અમને પાણીનો એટલો બધો પ્રોબ્લેમ છે કે જેની કોઈ વાત નહીં। અમે એટલા બધા હેરાન થઈ ગયા છે કે અમે અડધા દિવસ અહીંયા રહીએ છીએ, અડધા દિવસ સગાવાલાની ઘેર જવું પડે છે, નાવા ધોવાની પણ એટલી જ તકલીફ પડે છે, પીવાનું તો અમારે ઘેર આરો પણ નથી। અમે રોજ બહારથી 30-30, 40-40 રૂપિયાના જગ મંગાવીએ છીએ। અમારી પરિસ્થિતિ પણ એવી નથી, તો અમે શું કરીએ? કોર્પોરેશનમાં 8થી 10 વાર રજૂઆત કરી છે, પણ કોઈ જોવા પણ નથી આવતું ને કોઈ તપાસ પણ નથી કરતું કે ક્યાંથી આવું પાણી આવે છે। પાણીમાં તો એટલી બધી વાસ આવે છે, ગટરનું જ પાણી આવે છે, કોઈ વાપરવા માટે પણ લાયક પાણી નથી। એટલું ખરાબ પાણી અમે યુઝ કરીએ છીએ હમણાં મજબૂરીને કારણે। અમારે ત્યાં એપાર્ટમેન્ટમાં એટલું ગંદુ પાણી આવે છે કે ગટરનું જ પાણી આવે છે। આજે કેટલા વખતથી પાણી સારું આવતું જ નથી। આ રોગ આ બધા બીમાર પડેલા છે, તાવ આવે છે બધાને, ને તો કોઈ કેટલી અરજી કેટલું કર્યું કેટલું કીધું પણ કોઈ જોવા આવતું જ નથી। ના આવે છે તો કે આરાનું પાણી વાપરો, હે અમે નરેન્દ્ર મોદીને એલાઈ કરીશું। स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर शहर यूथ कांग्रेस के कार्यकरों ने गोरवा के बाढ़ पीड़ित इलाके की सफाई की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस कमेटी ने गोरवा के बाढ़ पीड़ित इलाके राजीव नगर गड्ढे की सफाई कर स्वर्गीय राजीव गांधी को अनोखी श्रद्धांजलि दी। शहर में बाढ़ की स्थिति के बाद कई इलाके अब तक गंदगी से लबरेज है। ऐसे में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सघन सफाई अभियान चलाकर इस इलाके को साफ किया, जिससे इस इलाके में बीमारियां पनपने से रोकी जा सके। हमने मुद्दा जो उठाया है, इस भाई ने हमारी मदद की, अशफाक भाई मलिक ने, और जो कोई भी कार्यकर्ता आगे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हम के यहाँ पर बहुत तकलीफ़ थी हम लोगों को, पानी में हमारा पूरा अनाज वगैरह सब कुछ चला गया, बच्चे बीमार हो गए, पाँव में कोवारा लग गया। इसलिए हमने ये हमारे दिल से एक आवाज़ निकली कि भाई यहाँ पर रहते, तो हम उनके पास दौड़े गए, जल्दी जल्दी तांदल जा और इन भाई को जगाया। चलो उधर बहुत सारी हमारे जैसी महिला बच्चे सब कुछ बीमार हो रहे हैं, पानी में परेशान हो रहे, सब निकल निकल के भाग रहे जैसे वैसे। तो इन्होंने हमारी बहुत मेहरबानी करी। आज सरकार के तरफ से हमको कुछ भी मदद नहीं आई अभी तक, क्या इसलिए हमने अभी तक राह देखी, कुछ भी मदद नहीं आई, फिर हमने ये मुद्दा उठाया। गोरवा विस्तार में आए हुए राजीव नगर खाड़े में हम लोग आए हैं। आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है इनका। इस मौके के ऊपर हम लोगों ने, जब पूरा बड़ौदा शहर बाढ़ से पीड़ित था, तो ये एक एरिया राजीव नगर खाड़ा जिसके अंदर कई वक्त से बाढ़ पीड़ित लोगों से किसी भी तरह की गवर्नमेंट से या कलेक्टर श्री से कोई मदद आई नहीं थी। हम लोगों ने इस राजीव गांधी जी के जन्मदिन को इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का तय किया, और उसके मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पे आए और हमने साफ़ सफाई झुंबेश की। यहाँ पे काफ़ी दिनों से गंदगी फैली हुई थी, गवर्नमेंट से कोई आता नहीं था, कॉरपोरेशन से कोई आता नहीं था, इसलिए हम लोग आज खुद आए हैं और हम लोगों ने खुद ने यहाँ पे साफ़ सफाई झुंबेश चलाई है। और राजीव नगर के खाड़े में जो रोग चाड़े का दर है उसको कंट्रोल करने के लिए DDT पाउडर छिड़काव साफ़ सफाई झुंबेश किया हुआ है। गोत्री तालाब में बरसाती पानी के संग्रह की योग्य व्यवस्था न होने की वजह से पानी संग्रह नहीं हो पाता है। पिछले दिनों शहर में एक ही दिन में हुई 20 इंच बारिश में गोत्री तालाब पूरा भर गया था, लेकिन दूसरे ही दिन गोत्री तालाब की स्थिति ज्यों की त्यों हो गई, यानी कि आधा तालाब खाली हो गया। गुजरात सरकार द्वारा तालाबों को गहरा कर सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत जल संग्रह करने की योजना प्रस्तावित है, लेकिन गोत्री तालाब का पानी बरसाती कास के जरिए बह जाता होने की वजह से यहाँ जल संग्रह नहीं हो पाता है। सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत गोत्री तालाब को भी गहरा कर यहाँ जल संग्रह किया जा सकता है, जिस पर प्रशासन द्वारा कई सालों से ध्यान नहीं दिया जा रहा।
સર 31 તારીખના જે વરસાદ વડોદરા શહેરમાં એટલો બધો 18 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો અને એ વરસાદ પડવાથી આપણા જે ગોત્રી તળાવ છે ગોત્રી તળાવ હાઉસફુલ થઈ ગયું હતું, છલકાઈ ગયું હતું. તે પાણી બીજા દિવસે બપોર સુધીમાં પાણી ખાલી થઈ ગયું. તે પાણી જયું ક્યાં આગળ? અહીંયા આગળ એક કાંસ છે, બહુ મોટો કાંસ. આ કાંસમાંથી ભાયરી તળાવમાં જાય, ભાયરી તળાવથી આગળ ગામોમાં જાય અને સીધું જંબુસર દરિયામાં બધું પાણી જતું રહે છે. અમે કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કોર્પોરેટરને કહીને કરી કે ભાઈ આ જે નાળું છે ને ત્યાં આગળ જે એ છે ને પારી 1-2-3 ફૂટની જો પારી કરવામાં આવે તો 3 ફૂટ એટલું પાણી રહે આમાં. એટલે અમારી એવી વારંવાર રજૂઆત છે. પછી આ તમને સામે વેરા જે દેખાય છે એ વેરા આવે છે અને પછી એને કોઈ શરૂઆતમાં સાફ નથી કરતું. પછી વેલા ભરાઈ જાય ને આખું તળાવ ફૂલ થઈ જાય એટલે સરકારના દર વર્ષે 2-4 લાખ રૂપિયા આ વેલા કાઢવામાં જતા રહે. જો આ વેલા શરૂઆતથી કાઢવામાં આવે તો 5-10 હજારમાં આ વેલા નીકળી જાય. બાકી આ લાખો રૂપિયાનો આમાં એ થાય છે. એટલે સરકારના પૈસા વેડફાય છે. એટલે અમારી તો અધિકારીઓને બધાને વારંવાર રજૂઆત હોય છે કે ભાઈ શરૂઆતમાં જે વેરા આવે છે એને કાઢી નાખો તમે તો વધે ના, અને આ વેરાઓ વધ્યા કરે છે. હવે શું થશે, દિવાળી પછી છે તે ગટરનું પાણી આવશે અંદર, એટલે ઉનાળામાં તો એટલી બધી ગંધ મારશે કે તમને તળાવના કિનારે બેસવાનું મન નહીં થાય. પણ જે ગુજરાત સરકારનું એક એ છે મુહિમ છે કે જેટલા બી શહેરમાં કે ગામડાઓની અંદર તળાવો આવે તળાવો બનાવી અને પાણીનો સંગ્રહ કરવાનો. તો ગોત્રી ગામની અંદર જે તળાવ છે એમાં લાગે છે તમને સંગ્રહ થઈ રહ્યો? નહીં થયો, સંગ્રહ નથી થતો. જો આ પારી ચણવામાં આવે તો સંગ્રહ થાય અને લેવલ ઊંચું આવશે. જે બીજા બ્રિજ એ છે એનું એ ઊંચું આવશે સ્તર, અને સ્તર ઊંચું આવે એના લીધે ઘણા લોકોને પાણી સારું મળી રહે એવી અમારી ઈચ્છા છે. ને આ ગટરનું પાણી આવતું જો બંધ કરવામાં આવે તો બહુ सारू है। दिव्यांग बच्चों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने का बीड़ा दीपक फाउंडेशन ने उठाया है। इसी के तहत एक अनोखा एग्जीबिशन आज निजामपुरा के समाज सुरक्षा संकुल में आयोजित किया गया। शहर के सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन की कंसोर्शियम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन अभियान अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को रेगुलर स्कूल में पढ़ाने का प्रयास पिछले कई सालों से किया जा रहा है। इसी अभियान के भाग स्वरूप दीपक फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों को अपनी स्कूलों में शामिल करने वाली स्कूलों और स्कूलों के संसाधनों के साथ शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। इन संसाधनों की प्रदर्शनी भी निजामपुरा के समाज सुरक्षा संकुल में लगाई गई, जिसके जरिए दिव्यांग बच्चों को मेन स्ट्रीम में पढ़ाकर अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करने का उम्दा प्रयास किया गया। इस अभियान में दीपक फाउंडेशन के साथ सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत आने वाली स्कूल, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति अंतर्गत आने वाली स्कूल और कई निजी स्कूलें शामिल हैं। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, उनकी पत्नी संध्या गहलोत, दीपक फाउंडेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानर रुचि मेहता, कंसोर्शियम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रोमिला जालपुरी उपस्थित रही। ये एग्जीबिशन हमने इसलिए रखा है कि हम लोग एक सपोर्ट और रिसोर्सेज सेंटर बना सके यहाँ पे, जिससे स्कूल्स जो इंक्लूसिव एजुकेशन में बिलीव करती है और जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो लोग आके अपने रिसोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले करें और उनकी क्लासेस में वो जो अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए वो भी इधर एग्जिबिट में रख सकें। खास करके यहाँ पे आज कितने स्कूल्स में पार्टिसिपेट और कितने टीचर्स हैं? सो यहाँ पे आज अराउंड 6 और 7 स्कूल्स हैं, बट पार्टिसिपेंट्स हम लोग ने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कंपटीशन रखा है उसमें हम लोग के पास 51 टीचिंग लर्निंग मटेरियल आए हैं, जिसका एग्जीबिशन है यहाँ पे। और ये जो टीचिंग मटेरियल है वो बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? तो इससे हम लोग टीचर्स को बोल रहे हैं कि वो इनोवेटिव वेज़ में सोचे, अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें, जिससे वो लोग बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं वो लोग भी सेम एक्सपीरियंस उनको भी मिल पाए जो दूसरे बच्चों को मिल रहा है। इसलिए हम लोग ने उनको बोला है कि कोई भी एक टाइप की डिसेबिलिटी सोचे जो उनकी टीचिंग लर्निंग मटीरियल में ऐसे ऐड करे जिससे इट इज़ एक्सेसिबल फॉर पीपल और स्टूडेंट्स विद दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। दीपक फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव हाथ में लिया है कि जो भी बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं वो एक अलग इंस्टीट्यूट में बाकी सोसाइटी से अलग होके ना पढ़े आगे बढ़े, बाकी बट
रेगुलर स्कूल्स में ही पढ़े बाकी बच्चों के साथ, उनको भी वही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिले जो बाकी बच्चों को मिलता है। इसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चों का फ़ायदा नहीं है, रेगुलर बच्चों का भी फ़ायदा है, क्योंकि वो लोग भी सीखते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे काम करना है, दूसरे बच्चों के साथ एम्पैथी जो बोलते हैं वो कैसे रखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, हमको हर तरह के लोगों के साथ रहकर ही आगे बढ़ना है। तो ये एजुकेशन कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसका इनिशिएटिव है ये। खास करके कितने बच्चे और कौन से स्कूल्स में उनको एडमिशन दिया? हमारे कंसोर्शियम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के पूरे ये स्टेट लेवल, पूरे गुजरात स्टेट का इनिशिएटिव है और स्टेट लेवल पे हमारे पास 25 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां डिफरेंट NGO, स्कूल सब इस में काम करते हैं। समाज सुरक्षा संकुल जो दीपक फाउंडेशन मैनेज कर रही है ये संस्था, यहाँ पे इसे हमने 22 बच्चों को रेगुलर स्कूल में रखा है और ये बच्चे टोटली ब्लाइंड है, विजुअल इम्पेयरमेंट, अलग अलग लेवल का विजुअल इम्पेयरमेंट है, लेकिन ब्लाइंड है सब बच्चे। उनको हमने मेन स्ट्रीम एजुकेशन में रखा है। कौन से स्कूल? बरोड़ा हाई स्कूल में जाते हैं बच्चे, वेब मेमोरियल स्कूल में जाते हैं और फिर वहाँ से जब वापस आते हैं तब हमारी संकुल जो स्कूल और रिसोर्स सेंटर है, यहाँ पे हम कंप्यूटर, ब्रेल, सेंसरी एक्टिविटीज़, मोबिलिटी ट्रेनिंग वो सब सिखाते हैं। और हम बहुत लोगों को बोलते हैं, स्कूल्स को बोलते हैं कि आप प्लीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनसे उनका बहुत फ़ायदा हो सकता है। आज दीपक फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के जो कैंपस है, यहाँ पे अपना दिव्यांग बालकों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके जो शीर्षक के नेजा हेडेड ये कार्यक्रम है जिसमें अपने जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए पूरे अभी क्या लेटेस्ट टेक्निक अवेलेबल हैं, कितने मटेरियल अवेलेबल हैं, कितने तरीके से इनको पढ़ाया जा सकता है जिससे ये बच्चे जल्दी से जल्दी उसको ग्रैस्प कर सकें, उसको समझ सकें। और दूसरा पर्पज़ है कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम में जो बच्चे हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, उनके साथ ये बैठें, उनके साथ पढ़ें और एक नॉर्मल बच्चे जैसा वो भी एजुकेशन लें, उसके हिसाब से ये आज का कार्यक्रम है। और इसमें बहुत सारे लोग पूरे गुजरात के अलग अलग जगह से टीचर्स लोग, बहुत सारे NGOs, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपनी टेक्निक उन्होंने अपना निकाला है। उस टेक्निक को हम लोग भी देखा, काफ़ी अच्छी टेक्निक है जो अपने बच्चे जैसे हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी कोई चीज़ को समझ सकें, किसी चीज़ को वो उसको गेस कर सकें चीज़ क्या है और उसको बना सकें, लिख सकें, वो करके फिर सबका एक ही पर्पस है कि ऐसे बच्चे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कि अपने मेन स्कूलों में जो बच्चे आते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ बैठें, वहाँ पढ़ें और आगे चल के इनके भगवान ने इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी दिया इन बच्चों में, इतनी ज़्यादा क्वालिटी दिया है, वो क्वालिटी को ऊपर लाया जा सके, उसके हिसाब से ये आज कार्यक्रम है। उसके लिए मैं दीपक फाउंडेशन ने जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया उनको खूब जो मैं अभिनंदन देता हूँ और इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग को भी खूब अभिनंदन देता हूँ जिन्होंने मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। VNM न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। शीसा बजाज लिमिटेड ना ऑथोराइज डीलर બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એવેન્જર સહિતના 2 વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ। મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999 રૂપિયામાં। 999માં સિટી 100, 1199માં પ્લેટિના અને 4999માં પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક। સ્કીમ ફક્ત 31 ઓગસ્ટ સુધી જ લાગુ, તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો शीशा बजाज, शीशा स्क्वायर, ऑपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। समा पुलिस ने लाखों रुपए के ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समा पुलिस थाने के सर्विलांस स्टाफ ने पूर्व सूचना के आधार पर समा चौकड़ी निकट से ड्रग्स पाउडर के साथ 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से मेथाम्फेटामाइन नामक ड्रग्स बरामद की गई जिसकी कीमत 5,70,000 रुपए है।
कोतवालीपुरा के निवासी राज परमार और वीरेंद्र चौहान इस मामले गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर ड्रग्स कहां से लाए थे और कहां बेचने वाले थे, उसकी जांच पुलिस कर रही है। गईकाले समા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સમા પોલીસ સ્ટેશન તરફથી એક નાર્કોટિક્સનો કેસ કરવામાં આવેલ છે। એ કેસ ધુમાલ ચોકડીમાં સવારના વહેલા સમયે કરવામાં આવેલ છે, જેમાં 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। આ નાર્કોટિક્સ કેસમાં 95 ગ્રામ MDMA મેથેડામ્ફેટામિન પકડવામાં આવેલ છે। આરોપીની પૂછપરછમાં आज विस्तारना एक बीजा वॉन्टेड आरोपी नाम खुलेल है, जे मुंबई आ माल मंगावता था और मुंबईना 2 पेडलरनी नाम सामे आवेल है। पुलिस एनी धरपकड़ में पूरी कोशिश में है। ये जो ड्रग है ये बड़ोदा में अलग अलग विस्तार में एनी पहला पण अलग अलग पुलिस स्टेशन में केसीस थयेल है। जे युवान छोकरो है, अलग अलग कॉलेजो है, यूनिवर्सिटी है, आनी साथे एनी कनेक्शन जोड़ायेल है। ये बधा युवान छोकरो एनी कस्टमर छे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमित कॉम्प्लेक्स स्थित ब्राइट डे स्कूल में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूली छात्रों में राष्ट्र भावना जगाने के आशय से अमित कॉम्प्लेक्स की ब्राइट डे स्कूल में देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। पिछले दिनों ही हमने 73वां स्वतंत्रता दिन मनाया है। इसी उपलक्ष्य में स्कूल में देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 21 छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने देश के वीर जवानों की वेशभूषा में सज्ज होकर प्रतियोगिता में शिरकत की, जिससे स्कूल में देशभक्ति का माहौल देखने मिला। इस मौके पर ब्राइट स्कूल की जॉइंट डायरेक्टर शैरवी शाह, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज शोभाराज पुरोहित, इंचार्ज प्रिंसिपल नीना शुक्ला ने उपस्थित रहकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। आज ब्राइट स्कूल अमित कॉम्प्लेक्स कारी बाग में सेकेंडरी सेक्शन के बच्चों का पेट्रियाटिक सॉन्ग कंपटीशन था। 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और खूब ही अच्छी तरीके से अलग अलग पेट्रियाटिक सॉन्ग्स को प्रिपेयर किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से गाया और स्टेज पर प्रेजेंट किया। ये कंपटीशन थी तो आखिर में बच्चों को प्राइजेस दिए गए और खूब ही अच्छा कंपटीशन रहा और सभी बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया और उन्होंने ये मैसेज लिया कि सिर्फ कंपटीशन या रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के दिन ही नहीं पेट्रियाटिज्म आना चाहिए, पर हर वक्त एक इंडियन सिटीज़न के अंदर अपने देश के लिए प्रेम होना चाहिए और ये किसी दिन पे डिपेंड नहीं करता। और ऐसे ही उन्होंने अच्छे सॉन्ग्स गाए और बहुत ही अच्छा रहा। तरसाली रोड पर 2-3 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने बेखौफ तरीके से चोरी की। तरसाली धनियावी रोड पर कुबेर लाइफस्टाइल अपार्टमेंट में बीती रात 2 से 3 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शातिर तस्करों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। 15 दिनों में दूसरी बार इसी अपार्टमेंट में चोरी की घटना घटी है। मामले की शिकायत विजय पटेल ने मकरपुरा पुलिस थाने में की है। कुबेर लाइफस्टाइल धनियावी रोड में रहता हूँ। कुबेर लाइफस्टाइल में ये 4 तारीख को 2 चोर घुसे थे जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है और कल रात में भी 2 चोर आए हैं और चोरी की वारदात हुई है यहाँ पर। और लेडीज़ अकेली रहती हैं। कई मकानों में दिन के टाइम तो बिल्कुल ही लोग काम पर निकल जाते हैं, सब लोग इस हिसाब से लेडीज़ अकेली रहती हैं। तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर कोई सख्त कार्रवाई करी जाए। कितने मकानों के ताले टूटे गए? कल 2 मकानों के ताले टूटे। મારી કાલે નાઇટ શિફ્ટ હતી અને રાત્રે 12 થી 7ની ટાઈમ હોય છે। હું એફએજીમાં જોબ કરું છું અને મને સવારે આ દીપેશભાઈ જે મારા પડોશ સામે પડોશી રહે છે એમના મુજબ મને જાણકારી મળી કે મારે ઘરે કોઈ ચોરી થઈ છે જેના તાળા તોડવામાં આવ્યા છે અને બાજુના જ ફ્લેટ B201 એનમાં પણ ચોરી થઈ છે અને મારે ઘરે ચોરીમાં કેશ રકમ 30,000 ઉપર હતી તે લઈ ગયા છે। બીજું તો કંઈ મળ્યું નહીં પણ બધું ટોટલી
બધા ડોક્યુમેન્ટને વેરવિખેર કરી નાખ્યું છે. આખો ફ્લેટને વેરવિખેર બધું જ સર્ચ મારી લીધું છે એમણે. અને બાજુના મકાનમાં B201 છે, એમનામાં બધું ટોટલી ચોરી વધારે થઈ છે ને એમને બી સર્ચ મારીને બધું જ કરી લીધું છે. પણ એ મકાન માલિક 2 મહિનાથી રહેતા નથી, એટલે મેઇન ટાર્ગેટ જ હતો. જાણવામાં આવ્યું છે કે સીસીટીવી પણ નુકસાન ને સીસીટીવી કેમેરાને બધાને પહેલાં એન્ટ્રી માટે સીસીટીવી કેમેરાને બધાને ડેમેજ કરવામાં આવેલા અને બધાને એંગલ બી ચેન્જ કરી નાખેલા હતા. ને અમારા ફ્લેટ પર અમારા જે ફ્લેટના એન્ટ્રી છે ત્યાં પણ સીસીટીવી હતા, એ પણ ડેમેજ કરીને પછી જ એન્ટ્રી લીધેલી હતી. શું પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે? પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અને તેની સાથે સાથે એ લોકો માસ્ક પહેરીને આવતા હતા એવું થોડું સીસીટીવીમાં દેખાતું છે, પણ ઓળખાતા નથી. देव सायुज्यम संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा संस्कृत सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। देव सायुज्य संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसका समापन समारोह और प्रमाण पत्र पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस सप्ताह के दौरान संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूल के 429 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रफुल्ल पुरोहित, विधायक सीमा मोहिले समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। समारोह में 10 श्रेष्ठ शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। नर्मदा साहित्य सभा द्वारा दुर्गेश उपाध्याय को उनकी कृति गुजराती आदिवासी संस्कृति के लिए श्री नानूभाई नायक पदक अर्पण किया गया। शहर के तुलसीवाड़ी इलाके के कई घरों में अभी तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। प्रशासन इसे निकालने की कोशिश कर रहा है। शहर में भारी बरसात और बाढ़ के बाद तुलसीवाड़ी इलाके में कई इंच पानी भर गया था। बाढ़ को 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस इलाके में पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोगों को अब तक सरकार की ओर से सहाय नहीं मिली है। अब कई दिनों के बाद बीमारियों के पनपने के डर से इस इलाके से पानी निकालने की कार्यवाही वडोदरा महानगर पालिका ने शुरू की है, लेकिन अभी भी यहाँ स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। अक्षर चौक स्थित हुंडई शोरूम में हुंडई का नया मॉडल हुंडई ग्रैंड i10 नियोस लॉन्च किया गया। हुंडई ग्रैंड i10 नियोस आज भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। शहर के अक्षर चौक स्थित हुंडई शोरूम में भी इस कार का लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया। ग्रैंड i10 नियोस को 4 वेरिएंट लेवल में बाजार में उतारा गया है। नई कार हुंडई के i10 ब्रांड की 3rd जनरेशन कार है। इसका लुक ग्रैंड i10 के वर्तमान मॉडल से अलग, स्पॉटी और बोल्ड है। यह कार 8 कलर्स में उपलब्ध है। मार्केट में इसकी टक्कर मारुति स्विफ्ट और फोर्ड फिगो जैसी कार से होगी। ग्रैंड i10 नियोस में दिए गए शार्प प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRL, नई कैस्केडिंग ग्रिल, बॉनेट पर एग्रेसिव लाइंस और नए फॉग लैंप्स इसके लुक को शानदार बनाते हैं। साइड में दी गई लाइंस कार के साइड लुक को अट्रैक्टिव बनाती है। ग्रैंड i10 नियोस है। जैसे कि आपको पता है हुंडई ने न्यूली लॉन्च किया है ये कार। नियोस का मीनिंग ये है कि जैसे वाइडर एंड बिगर होता है उसका मीनिंग, वैसे ही हुंडई ने उसका नाम दिया है नियोस। ये कार में बेसिकली फीचर्स तो है ही है, साथ ही साथ उसमें स्पेस बड़ा है, कैबिन स्पेस बढ़ा दिया है। आउटर लुक जो फ्लूइडिक डिज़ाइन है वो थोड़ा यूज किया है, आगे से बॉनेट, कैबिन स्पेस, लेग रूम, और साथ ही साथ इसमें जो सीट्स में फैब्रिक यूज़ किया है प्रीमियम कार्स में जो आपको देखना मिलता है वो है। और प्रीमियम कार्स में आपको जैसे देखने मिलता है वायरलेस चार्जर है, 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, वो सब फीचर्स इसमें दिए हैं। जैसे कि आप कार आपकी चल रही हो तो आप रियर व्यू मिरर भी ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपको पीछे टच और टच ट्रैफिक में आपको पता लगता है। और इसमें म्यूज़िक सिस्टम में भी 8 इंच का है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिया है। कंपनी ने इसमें इंजन 1.2 लीटर का लॉन्च किया है, जो पहले ग्रैंड i10 में आता था। बेसिकली अब इसमें AMT लॉन्च किया है। जो ऑटोमेटिक फुल्ली आता था उसमें AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि ज़्यादा जो फ्यूल कंजम्पशन होता था उसकी जगह मैनुअल जितना ही फ्यूल कंजम्पशन होगा और आपको एक ऑटो का फील रहेगा। सेकेंडली इसमें BS6 है, जो अभी के हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिया है। डीजल में भी AMT लॉन्च किया है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो डीजल में भी आपको ऑटो का चॉइस मिलेगा, मैनुअल का भी मिलेगा, और माइलेज भी इसका काफ़ी अच्छा है। प्लस उसका एक्स शोरूम भी आपको स्टार्ट होता है 499 से, एरा मॉडल से तो जाता है मैग्ना, स्पोर्ट्स और एस्टा तक।
तो फीचर्स वाइज आप देखो, कैबिन स्पेस देखो, आप एक बार आइए शोरूम पे हमारे RS हुंडई पे, आप टेस्ट ड्राइव करिए हमारी कार, जिससे आपको फील बेटर मिलेगा। ये काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अच्छे अट्रैक्टिव है, जैसे कि आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दिए हैं पूरे एक साइड पे, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के, वायरलेस चार्जर है। उसमें एक यूज़फुल चीज़ दी है कि नीचे भी सेगमेंट में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिए, जो आपको प्रीमियम कार्स में दिखता है, इससे विजिबिलिटी और आपको ड्राइविंग हैंडलिंग अच्छा मिलेगा। बेसिकली वी हैव लॉन्च्ड, हमने नई गाड़ी आज लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रैंड i10 नियोस। नियोस इज़ बेसिकली आयरिश नाम है जिसका मतलब होता है मोर। सो ग्रैंड i10 जो था वो अभी भी हमारे कंपनी में हमारे साथ चल तो रहा ही है, बट उसके साथ एडेड फीचर्स के साथ, एडेड फैसिलिटीज़ के साथ ये ग्रैंड i10 नियोस आज हमने लॉन्च किया है। हमने आज तक 25 बुकिंग हमने 10 दिन में लिया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर 50 बुकिंग हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि दैट वी विल डू। ये गाड़ी में आप चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप वर्किंग क्लास सर्विस पीपल हो, आप सभी का रिक्वायरमेंट से गाड़ी कैटर करती है। आप हाईवेज़ पे चलाओ या आप सिटी पे चलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पैक्ट गाड़ी है, एकदम फुल्ली लोडेड गाड़ी है। और हम इसका नाम हमने ब्लॉकबस्टर ग्रैंड i10 नियोस हमने ऐसा नाम दिया है। वाई ब्लॉकबस्टर? बिकॉज ये गाड़ी ऑलरेडी इतना धमाल मचा चुकी है और फुल धमाल मचाएंगी, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ग्रैंड i10 ऑलरेडी गुजरात की नंबर 1 सेलिंग कार तो है ही, और डेफिनेटली ग्रैंड i10 नियोस के आने के बाद और वो नंबर्स हम बढ़ा के ले जाएंगे और ऑल ओवर इंडिया में हम नंबर 1 पहुंचेंगे। शहर के बाढ़ पीड़ितों ने सरकारी सहाय हेतु जिलाधीश कार्यालय में मांग की। शहर में बाढ़ की स्थिति के बाद लोगों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैशडॉल के रूप में की जा रही है, लेकिन कैशडॉल के सुचारू वितरण के अभाव में कई लोगों को आर्थिक सहायता नहीं मिली है। इस मामले पानीगेट इलाके के निवासियों ने जिलाधीश कार्यालय में सहायता की मांग की। અમે અજબડી મિલ પાણીગેટ વાઘરીવાસ વિસ્તારમાં રહીએ છીએ। ઘણા વર્ષોથી અમે રહીએ છીએ અને અમારે ત્યાં અવારનવાર જ્યારે બી પૂર આવે છે ત્યારે નુકસાન થાય છે, અને આ વખતે જરૂરત કરતાં વધારે, દર વખત કરતાં વધારે પાણી આવ્યું અને અમારા ઘરનું બધું ઘર વખરીનું સામાન તહસ નહસ થઈ ગયું છે। હજુ સુધી અમને કેશ ડોલ મળેલ નથી। કોઈ કલેક્ટરશ્રીને અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ કે અમારે કંઈ અમારા વિસ્તારના લોકોને કંઈ બી સહાય મળે, એમાંથી એ પગભર થાય, લોકો ધંધા રોજીરોટી કમાવા જાય, એના માટે જે બી કંઈ સરકારશ્રી મદદ કરે એ આશાથી અમે લોકો આવ્યા છે। बीती रात काला घोड़ा ब्रिज से किन्हीं अज्ञात वजहों से शख्स ने नदी में छलांग लगा दी, जिसे ढूंढने का प्रयास अभी भी जारी है। कालाघोड़ा सर्कल निकट विश्वामित्री ब्रिज से बीती रात एक शख्स ने छलांग लगा दी। वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने मामले की जानकारी फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग ने शख्स को ढूंढने के प्रयास शुरू किए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से शख्स का कोई अता पता नहीं मिल पाया। आज सुबह से दमकल विभाग की टीम ने कालाघोड़ा से लेकर भीमनाथ ब्रिज तक विश्वामित्री नदी में शख्स को ढूंढने के प्रयास किए। ये शख्स रिफाइनरी रोड पर रहने वाले सुनील चांदगुड़े होने की जानकारी मिली है। 47 वर्षीय सुनील कल रात गोत्री हॉस्पिटल जा रहा हूं कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात उनकी मोटरसाइकिल कालाघोड़ा ब्रिज निकट पाई गई। कालाघोड़ा ब्रिज निकट लगे सीसीटीवी कैमरे में भी सुनील चांदगुड़े नदी में कूद रहे हैं ऐसे दृश्य कैद हुए हैं, जिसके बाद से ही उनकी खोजबीन परिजनों, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान कर रहे हैं। शहर के शहीद जवान संजय साधु को एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आसाम बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात गोरवा के जाबाज संजय साधु शहीद हुए हैं। उनकी शहादत को सलाम करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में NSUI और FGS कृपल पटेल द्वारा आयोजित किया गया। आज रोज़ फिर से एक बार बड़ोड़ा में जो वीर शहीद जवान शहीद हुए हैं, जिसका नाम है संजय साधु, जो जिस तरह कल रात को वो असम में वो शहीद हुए थे, तो उसका वो भी MS ने BCom यहाँ से किया था उन्होंने। तो हम कॉमर्स फैकल्टी ने और कृपाल पटेल FGS द्वारा यहाँ पे उनको 2 मिनट का मौन दिया गया था। वडोदरा के वीर जवान संजय साधु को AGSG और JMG ग्रुप द्वारा भी यूनिट बिल्डिंग पर श्रद्धांजलि दी गई। उनके योगदान की सराहना करते हुए शहीद की शहादत को नमन किया गया। शहर के द्वारकेश ट्रैवल्स द्वारा श्रद्धालुओं को सिर्फ 2,999 रुपए में हरिद्वार की यात्रा कराई जा रही है।
मांजलपुर के श्री द्वारकेश ट्रैवल्स द्वारा सिर्फ 2,999 रुपये में शहर के श्रद्धालुओं को हरिद्वार, ऋषिकेश, राम झूला और लक्ष्मण झूला की यात्रा कराई जा रही है। 6 दिन और 5 रातों के इस पैकेज टूर में श्रद्धालुओं को खाने से लेकर रहने तक की सुविधा दी जाएगी। श्री द्वारकेश ट्रैवल की इस टूर में शामिल होकर यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। वडोदरानी द्वारकेश ट्रैवलना धर्मेशभाई द्वारा आयोजित आ टूर है અને 3,000 રૂપિયામાં કોઈ નથિંગ કહેવાય એવા નજીવા દરે સારામાં સારું પ્લેસ હરિદ્વારના દર્શન કરાવે અને તે શ્રાવણ મહિનામાં એટલે આટલા ઓછા ભાડેથી તો કોઈ ટ્રાવેલ્સ વડોદરામાં ના લઈ જાય કે કોઈ બી જગ્યાએ ના લઈ જાય અને તેમાં સિનિયર સિટીઝનો માટે તો કેટલું સરસ 2 ટાઈમ જમવાનું એક ટાઈમ નાસ્તો અને જવા આવવાનું ભાડું આટલા ઓછા ભાડામાં આટલું 3,000 રૂપિયામાં કોણ લઈ જાય આટલી મોંઘવારીમાં મને આટલા ઓછા ભાડામાં આવું પહેલું મારી પ્રથમ ટાઈમ હું હરિદ્વાર જઈ રહ્યો છું અને આટલું સરસ ભાડું અને આટલું સરસ ટ્રાવેલ અને આટલી સરસ ફેસિલિટીમાં આ એક જ ટ્રાવેલ છે વડોદરાની હું તો બધા સિનિયર સિટીઝનને કહું કે આ દ્વારકેશ ટ્રાવેલ્સનો તમે સંપર્ક કરો। મારું શ્રી દ્વારકેશ ટ્રાવેલ્સ છે અને અમે બરોડાના 350થી પણ વધુ યાત્રિકોને આજે હરિદ્વાર લઈ જઈ રહ્યા છે ફક્ત 3,000 રૂપિયામાં। એમાં જમવાનું, રહેવાનું, રેલવેનું ભાડું બધું જ ઇન્ક્લુડિંગ છે। ત્યાં અમે સાઇટ સીન પણ અમે કરાવીશું। આ એક સેવાના માધ્યમથી અમે લઈ જઈ રહ્યા છે। અત્યારે 350થી પણ વધુ યાત્રિકોને અત્યારે વલસાડ એક્સપ્રેસ દ્વારા અમે હરિદ્વાર લઈ જઈ રહ્યા છે। નેક્સ્ટ ટ્રીપ અમારી 25 ઓગસ્ટની છે। એમાં પણ વધુ 130થી વધુ યાત્રિકો અમે લઈ જઈ રહ્યા છે। ટ્રેનની અવેલેબિલિટી પણ અમે સેટઅપ કરતા હોઈએ છીએ કે શું ટ્રેનની અવેલેબિલિટી હોય છે એ પ્રમાણે અમે બધાને આયોજન કરતા હોઈએ। वेस्टर्न रोड के लिए जमीन अधिग्रहण मामले किसानों ने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया। चाणसद और जवेरीपुरा में वेस्टर्न रोड के लिए प्रशासन ने सन 1995-96 में जमीन अधिग्रहण किया था। इस मामले 24 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले में जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और उन्हें जमीन का उचित मुआवजा दिया जाने की मांग की। અમે ચાંસદ અને ઝવેરપુરા ગામના સંયુક્ત ખેડૂતો છે અને વેસ્ટર્ન રોડ જે ત્યાં ફળવેલો છે આજે 1995-96માં જમીન સંપાદિત કરવામાં આવી હતી અને 3 વર્ષથી ખેડૂતો કેસ જીતી પણ ગયા છે તો પણ હજુ સુધી કંઈ પણ રકમ ચૂકવવામાં આવી નથી। જો આવનારા 15 દિવસની અંદર અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે। આવનારા 15 દિવસની અંદર જો કંઈ પણ નિર્ણય નહીં આવે તો અમે ગાંધી ચિંતા માર્ગે ઉગ્ર આંદોलन કરીશું। शहर के 35 जूडो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता खेलने के लिए दिल्ली रवाना हुए। वडोदरा शहर के 35 जूडो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शिरकत करने दिल्ली जा रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों की वडोदरा रेलवे स्टेशन से रवानगी कराई गई। અમે દિલ્હી જઈ રહ્યા છે। જુડોની સ્પર્ધા છે અંડર 17, 19 અને બંને। વડોદરાના લગભગ 40થી 50 બાળકો છે। અમે અમારી આશા છે કે અમે બધા ગોલ્ડ જીતીને આવીશું અને ગુજરાતનું નામ અને ચેમ્પિયનશિપ લઈને આવીશું। જુડો અને તથા કુરાસ બે આ વખતે ઓલ ઇન્ડિયા રાખી છે તો આ પ્રથમવાર દિલ્હીમાં જે સારું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને વડોદરાને ફર્સ્ટ વાર આપણા વડોદરાને પહેલો ચાન્સ આપ્યો છે તો ગુજરાતની ટીમ અમે લઈ જઈ રહ્યા છે અને ગુજરાતનું સારું રિઝલ્ટ બી આવશે એવી આશા રાખીએ છીએ અમે। तो ये थी हमारी आज की खबरें। कल की खबरों के साथ आपसे कल फिर मुखातिब होंगे। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।